That is this world. इसी प्रकार संसार का नियम है। That is the corruption of this world. ये संसार का भ्रष्ट अवस्था है। That is the lust of this world. ये संसार का लोभ लालच है। It will never make you satisfied. और ये संसार में आपको कभी भी संतुष्ट नहीं देगा। But when you come to Christ, जब आप मसीह में आएगा, Christ makes you satisfied. यीशु मसीह आपको संतुष्ट बनाएगा। My dear people, you should not be deceived by this world and its lust. इसलिए मेरे भाई और बहनों, ये संसार का नियम नीति से आप धोखा नहीं खाना है, उस लोभ लालच में नहीं गिरना है। Receive the divine nature of Christ in your life. आप यीशु मसीह का स्वर्गीय स्वभाव को ले लेना है। When you receive that divine nature in your life, आपका जीवन में जो स्वर्गीय स्वभाव को ले लेता है, you will be able to overcome the corruption of this world system. आप ये संसार का नियम नीति का भ्रष्ट अवस्था को आप जय पाएंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. Fulfilling the purposes of God is the greatest thing in our life. हमारा जीवन में परमेश्वर का उद्देश्य को पूरा करना है, यही सबसे बड़ा काम है। What God wants to do in my life, परमेश्वर मेरा जीवन में क्या करना चाहता है, what is the purpose of God for my life? परमेश्वर मेरे जीवन के लिए क्या उद्देश्य रहा है। If you understood that truth in your life, अगर ये सच्चाई को आपका जीवन में आप जब समझ जाएगा, allowing yourself and making yourself available for God to fulfill His purposes in your life. और आप अपने आप को प्रभु के लिए, प्रभु का उद्देश्य को पूरा होने के लिए आप समर्पण कर सकेगा। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So in 2 Peter chapter 1 verse 5 onwards, दूसरा पीतर 1:5 से लेके this perfection growth, we can see that step by step growth in a child of God's life. और परमेश्वर का बच्चे सब का जो बढ़ने का जो एक का बाद एक सिद्धता में जो बढ़ने का बात दिखाई देता है। If you want to progress to that perfection, और सिद्धता बनने के लिए, अच्छा बनने के लिए आप उन्नति होना चाहता है। chapter 1 and verse 5 onwards, चैप्टर जो एक का दूसरा पीतर चैप्टर 1:5 से आगे लेके we see that step by step growth. इसमें एक करके आगे बढ़ता है। And it starts with faith. और इसमें विश्वास का बात लेके किया है। Verse 5 says that, but also for this very reason, giving all diligence, add to your faith virtue. That means it starts with faith. इसका मतलब आपका जीवन में सबसे शुरुआत में विश्वास से शुरुआत होता है। If you want to progress to perfection, आप सिद्धता में अच्छा बनने के लिए जब चाहता है, the first step, सबसे पहला कदम क्या है? faith. विश्वास होना है। Your Christian life began with faith. आपका मसीही जीवन विश्वास से शुरू होता है। How you become a child of God, how you were saved. आप मसीह का या परमेश्वर का संतान कैसा बना, या आप कैसा उद्धार पाया? Your salvation began with faith. आपका जो उद्धार है विश्वास का द्वारा मिला है। By faith you are saved. विश्वास का द्वारा आप बच गए हैं। Romans chapter 5 and verse 1. रोमान 5:1 में लिखा है, How you became righteous. आप कैसा धर्मी बन गए हैं? You became righteous because of faith. आप धर्मी इसलिए बन गया कि आप विश्वास है। Your salvation is by faith. आपका जो उद्धार है विश्वास का द्वारा मिला है। Ephesians chapter 2 and verse 8. इफिसियन 2:8 में दिया है। Romans chapter 5 and verse 1. रोमान 5:1 में दिया है। How you became righteous आप कैसा धर्मी हो गया? by faith. विश्वास का द्वारा। Praise the Lord. Praise the Lord. So we are the people who walk by faith, not by sight. हम सब ऐसे लोग हैं, हम देख के नहीं चलता है, विश्वास करके चलता है। If you want to walk this Christian life, आप मसीही जीवन में चलना चाहता है, you have to walk in faith. आप विश्वास में चलना है। If you want to follow Jesus Christ, आप यीशु का पीछे चलना चाहता है, you need to walk in faith. आप विश्वास में चलना है। And of course, the source of faith is the word of God. निश्चय विश्वास का जो उपाय शुरुआत है परमेश्वर का वचन से शुरू होता है। How you are going to receive faith in your life? आपका जीवन में विश्वास को कैसा पाएगा? Romans chapter 10 and verse 17 says that रोमान 10:17 ऐसा बोलता है, the source of faith is the word of God. विश्वास पाने के लिए प्रभु का वचन से मिलता है। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. I told you that your healing is already took place on the cross of Calvary 2000 years ago. मैंने पहले ही आपको बताया है, आपका शरीर में जो चंगाई हो चुका है वो आज से 2000 साल पहले कलवरी क्रॉस में हो चुका है। And how you are going to take that healing in your life? और How वो- you are going to make it your own healing?
और उस कलवरी क्रूस में जो चंगाई हो चुका है, उस चंगाई को आपका शरीर में पूरी तरह चंगाई होने के लिए कैसा मिलेगा? By faith. विश्वास करके। Praise the Lord. Praise Lord. If it is by faith, अगर ये विश्वास से होता है, what is the source of faith? विश्वास का पहला उपाय कहाँ है? The word of God. परमेश्वर का वचन में है। And now you are hearing the word of God. अभी परमेश्वर का वचन आप सुन रहा है। By hearing the word of God, परमेश्वर का वचन को सुनते सुनते what is going to happen in your life? आपका जीवन में क्या होने वाला है? Faith is going to increase. आपका विश्वास बढ़ेगा। Faith is going to increase. विश्वास बढ़ेगा। Faith is going to increase. विश्वास बढ़ेगा। When that faith increases in your life, विश्वास जब आपका जीवन में बढ़ता है, that uncurable disease will become curable. आपका जीवन में जो बीमार नहीं भी अच्छा होने वाला भी अच्छा हो जाएगा। That unattainable healing becomes attainable. और जो चंगाई नहीं होने वाला भी हो जाएगा। It becomes your healing. ये आपका चंगाई हो जाएगा। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 And one of my friends in another state, एक जगह में मेरा एक दोस्त है, and his mother was seriously sick and bedridden. और उसका माँ बहुत खराब से बीमार हो गया था और बिस्तर से उठ नहीं पाया। Once he was sitting in the room, और जब वो रूम में जो बैठ रहा था, and he was just hearing the word of God and praying, और जब परमेश्वर का वचन सुन रहा था और प्रार्थना कर रहा था, a mighty man of God was preaching the word of God. उसमें परमेश्वर का बड़ा दास एक प्रभु का वचन को बोल रहा था। So this young man was hearing the word of God. और ये जवान लड़का परमेश्वर का वचन को सुन रहा था। And hearing the word of God, परमेश्वर का वचन सुनते सुनते hearing the word of God, सुन रहा था, faith increased. उसका मन में विश्वास बढ़ गया। Hearing the word of God, परमेश्वर का वचन सुन रहा था hearing the word of God, और सुनते सुनते he became like a lion. और ऐसा विश्वास बढ़ गया कि वो सिंह का जैसा बन गया है। He got up, एकदम खड़ा हो गया went to his mother's room, और मां का रूम में जाके and commanded, in Jesus' name, right now, get up from the bed. और मां को इसी प्रकार आज्ञा दिया कि यीशु मसीह का नाम से तुम चंगाई हो जाओ और खड़े हो जाओ। You know what happened? उसमें क्या हुआ? All on a sudden, that lady was healed. और अचानक से उसका स्त्री का चंगाई मिल चुका है। Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। This man was a believer. और ये आदमी एक विश्वास आदमी था। He prayed for his mother many times. और उसका मां को बहुत बार प्रार्थना किया। But what happened on that day? लेकिन उस दिन में उसको क्या हुआ? When he was hearing the word of God, जब प्रभु का वचन को सुन रहा था hearing the word of God, और सुनते सुनते hearing the word of God, प्रभु का वचन को सुन रहा था, full of faith. उसका मन में पूरी तरह से विश्वास बढ़ गया। Praise the Lord. Praise the Lord. 2 Peter chapter 1 and verse 5, 6, 7. दूसरा पीतर 1 का 5, 6, 7। Let me explain fast and then I will pray for you. और इसको मैं कुछ बताने के बाद मैं प्रार्थना करता So हूँ। it starts with faith, ये विश्वास से शुरू होता है and from faith it goes to virtue. और विश्वास का बाद वर्च्यू होता है। What is the meaning of virtue? It means good moral quality in a person. वर्च्यू का मतलब किसी भी व्यक्ति के जीवन में एक अच्छा चाल चलन, अच्छा सोच विचार होने वाला। Your Christian life began with faith, but it moves to sadgun. आप विश्वास से उसको आगे क्या होगा? आपका एक अच्छा गुण आपका जीवन में, स्वभाव में, चाल चलन में अच्छा हो जाएगा। One example, एक उदाहरण के लिए, patience is a sadgun. एक संयम लेना माने पेशेंस, इंतजार कर सकना, एक ये सद्गुण का एक स्वभाव है। So you will grow to sadgun, virtue. और आप सद्गुण हो जाएगा, एक अच्छा स्वभाव हो जाएगा। Morally you will become a good person. आप मोरली आप एक अच्छा व्यक्ति होगा। From virtue you will move to knowledge. और उस वर्च्यू से लेके, सद्गुण से लेके आप बुद्धि मिलेगा। Go to first Philippians chapter 1 and verse 9 to 11. फिलिपियन चैप्टर 1 वर्स 9 से लेके 11 तक। That your love may abound still more and more in knowledge. और इसमें लिखा है आप जैसा बढ़ते बढ़ते ज्ञान में आप बढ़ना है, समझ में, ज्ञान में आगे बढ़ना है। And this is spiritual knowledge. ये आत्मा बातों को समझने का बात है। And again in verse 11 it comes being filled. और वर्ष 11 में लिखा है कि आप भरपूरी से बढ़ना है। This is a common word in the word of God. Whenever it speaks about some qualities,
God wants to fill the people with that quality. और प्रभु का वचन बताते बताइए सबके लिए ये समझने का बात है, परमेश्वर लोगों को कुछ भर के देना चाहता है, भरना चाहता है। If He blesses you, He fill you with blessings. आपको जब आशीष करता है, आशीष करने के मतलब आपका जीवन में भर देता है। If He gives you spiritual knowledge, He will fill you with spiritual knowledge. और आत्मिक जीवन, आत्मिक ये जानकारी देने के लिए आपका जीवन में भर देता है। When you receive this spiritual knowledge in your life, जब आत्मा का ज्ञान को, बुद्धि को आपका जीवन में जब मिलता है, it's written you will discern the will of God. परमेश्वर की इच्छा को आप समझ पाएगा। Again, the source of spiritual knowledge is the word of God. और फिर से और आत्मा का विषय को जानने के लिए, समझने के लिए परमेश्वर का वचन ही है। Yes, if you want spiritual gyan, the word of God. आप स्वर्गीय ज्ञान बुद्धि को पाना चाहता है तो प्रभु का वचन को आप जानना है। Please read some verses from Psalms 119. Few verses we will read. Verse number 9. जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। Praise the Lord. How Praise can a Him. young man cleanse his way? By taking heed according to your word. जवान लोग कैसा शुद्ध रहेगा, कैसा पवित्र रहेगा? परमेश्वर का वचन को समझ के उसको पालन करके आप पवित्र रहेगा। Verse 11. मैंने तेरे वचन को हाँ। अपने हृदय में रख छोड़ा है। Yes, your word I have hidden in my heart that I might not sin against you. इसका मतलब मैं परमेश्वर का वचन को मैं अपना मन को रखता हूँ ताकि मैं पाप ना करूँ। Verses 105. तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। Praise the Lord. Praise the Lord. Your word is a lamp to my feet and a light to my path. परमेश्वर तेरा वचन मेरा पाँव चलने के लिए एक दीपक लाइट का जैसा है और मेरा जाने का रास्ता में उजाला बन के रहता है। When you turn your focus to the word of God, जब परमेश्वर का वचन को आप ध्यान देते हैं, you will receive spiritual knowledge. आपका जीवन में स्वर्गीय बुद्धि को मिलेगा। And spiritual knowledge is the light in your life. आपका स्वर्गीय बुद्धि आपके जीवन में ज्योति बन के, दीपक बन के रहता है। That becomes lamp to my feet and light to my path. और हमारा पाँव के लिए एक दीपक बनता है और मार्ग के लिए एक उजाला बनता है। Verses 130. वर्सेस 113। Yes. तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है। Yes. उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. If you want more knowledge, हमें समझ बुद्धि चाहिए। if you are a simple person, आप एक साधारण व्यक्ति हो सकता है, if you want more knowledge, हमें बुद्धि चाहिए। turn to the word of God. परमेश्वर का वचन को आप देखिए। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. So in 2 Peter chapter 1 and verse 6, it says that we are moving from faith to virtue, and from virtue to knowledge, and from knowledge you will be going again to self-control. हम 2 पीतर 1 का 5, 6, 7 को देखने से विश्वास से शुरू होता है, विश्वास का साथ सद्गुण, सद्गुण का साथ बुद्धि, बुद्धि का साथ बात Self control. अपने आप को हम कंट्रोल करना। This is very important. ये हमारे लिए बहुत जरूरी बात है। You need self-control for your physical appetites. आप अपना शरीर का लालसा को रुकाने के लिए आप अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। Self-control to your thought. आपको सोच विचार को कंट्रोल करना चाहिए। Self-control to your speech. आपका बातों को जो बात करता है संभाल के बात करना है। I have not much time to explain these things. इस बातों को मैं बताने के लिए मेरे पास समय नहीं है। Physical appetite, we have many physical appetites. हमारा शरीर में ऐसा बहुत सा लालसा है, इच्छा होता है। Sexual appetites are there. ऐसा व्यभिचारी का स्वभाव भी है। If you are a Christian, अगर आप मसीह you है, need self-control. आप अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। Do not commit adultery. आप व्यभिचारी ना गिरे। If you are a child of God, आप परमेश्वर का बच्चे हैं, immoral activities are not for you. व्यभिचारी का काम सब आपके लिए नहीं है। You should keep your body clean. आपका शरीर को पवित्र रहे।
If you have some sexual failures in your life, अगर आपका जीवन में ऐसा व्यभिचारी में अगर गिर गया है you need to receive a deliverance and healing in that area. और उस जगह में भी आप प्रभु से चंगाई मिलना चाहिए, छुटकारा मिलना चाहिए, And also the thought realm. और भी सोच विचार के बात लेके भी You need self-control in your thought realms. आप अपना सोच विचार में भी आप कंट्रोल कीजिए, And also your speech. और आप जो बात बोलता है उसी बातों में भी कंट्रोल कीजिए। You don't gossip about other people. दूसरों को बातों से दुखाना नहीं है, दर्द देना नहीं चाहिए। Take care of your speech. आपका बातचीत को संभाले, Don't backbite. किसी का पीछे में आप खराब बात मत बोलिए, Don't complain. किसी को शिकायत ना करे। And how you are going to overcome all these bad natures of your tongue? और इसी प्रकार का सब बुराई बातों जो आपका जीभ से मुख से निकलता है उसको Praise- कैसा कंट्रोल करेगा? Praise God always. इसीलिए परमेश्वर को हमेशा स्तुति करते रहे। Use your tongue to praise God. आपका जीभ को हमेशा प्रभु को स्तुति में इस्तेमाल करते रहे। One brother was telling me that oh, these Christians are all gossip talking people. और एक दिन मुझे एक व्यक्ति ने बताया कि क्रिश्चियन का लोग हमेशा गॉसिपिंग करते रहता है। And I told him, right now you are gossiping. और मैं उसी समय में सोच रहा था अभी आप भी तो गॉसिपिंग कर रहा है। He was also gossiping about Christians. और वो भी दूसरों लोगों का मसीही लोगों को गॉसिपिंग कर रहा है बोल के बोल रहा था। So if you want to overcome such nature, और इसी प्रकार को जीत पाने के लिए start praising God. हमेशा प्रभु को स्तुति महिमा धन्यवाद देते रहे। Always praise God. हमेशा प्रभु को महिमा करते रहे। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. From self-control, और अपने आप को कंट्रोल करने के बाद you can go to perseverance. What is sahansilada? सहनशीलता का मतलब क्या है? Continued effort and determination. हमेशा लगते रहना और निर्णय लेके करते रहना। Pastor got sahansilada अब पास्टर लोग सहनशीलता नहीं है, because God sent him to Arunachal Pradesh 25 years ago. 25 साल पहले परमेश्वर ने पास्टर को अरुणाचल प्रदेश में भेजा। Still he is in Arunachal Pradesh. अभी भी अरुणाचल प्रदेश में है। How? कैसे? Sahansilada. उसी में उसका मन में सहनशीलता है। So God gives you a responsibility प्रभु आपको जब एक जिम्मेदारी देता है, after working for some years. कुछ साल करने के बाद Oh, I am fed up. उसको मैं नहीं सकता हूँ, I am stopping this. मैं इसको छोड़ देता हूँ। And from that sahansilada, you have to go to godliness. और उसका बाद हम godliness. धार्मिकता होना है, प्रभुता में होना है। Yes, what is the definition of godliness? Simple fear of God. और धार्मिकता होने का मतलब क्या है? हम परमेश्वर का भय मानना है। Fear of God is not like fear of snakes. और परमेश्वर को भय मानने का मतलब ऐसा नहीं कि सांप देख के हम डर जाता है, ऐसा नहीं है। We fear snakes. हम सांप को डरता हूँ, We fear elephants. हम हाथी को भी डरता हूँ, Fear of God is not like that. लेकिन परमेश्वर को भय मानना ऐसा नहीं है। Fear of God is out of reverence. परमेश्वर को भय मानने का मतलब आप आदर का साथ उसको भय मानना है। Praise the Lord. Praise Lord. Hallelujah. हालेलुया। That proceeds out of love. वो प्रेम का साथ अपना मन से निकलता है। Amen. आमीन। So when you fear God, जब आप परमेश्वर को भय मानते हैं, you hate sin. आप पाप को नफरत करता है। Why people are enjoying sin? लोग पाप को क्यों मनाते हैं? There is no fear of God. क्योंकि उसका मन में परमेश्वर को भय नहीं मानता है। Sodom and Gomorrah, सोदोम और गमोरा जगह में, they were committing all evil in that society. और उस सोदोम और गमोरा में हरेक प्रकार का बुराई काम उसमें चल रहा था। Why? क्यों? There was no fear of God. और उस समाज में परमेश्वर को भय नहीं मानता था। When you have fear of God, जब आपका मन में परमेश्वर को भय मानता है, you hate sin. आप पाप को नफरत करेगा। You will not compromise with sin. आप पाप को कभी भी समझौता नहीं करेगा। That is godliness. वही प्रभुता में बनने का बात है। From godliness to brotherly kindness. और प्रभुता से भाईचारे का एक दया होना है। And finally to love. और उसका बाद प्रेम होना है। So this is what is the fruitful growth in your faith. इसीलिए विश्वास में पल पाने के लिए ऐसा आगे बढ़ना चाहिए। When you progress to perfection, जब आप सिद्धता बनने के लिए जब बढ़ता है, finally where you will reach?
अंत में आप कहाँ पहुंचेंगे? Love. प्रेम में पहुंचेगा, Love of God. परमेश्वर का प्रेम में पहुंच जाएगा। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. If your goal is perfection, अगर आपको सिद्धता के लिए बुलाया है, finally you are going to reach in love, अंत में आपको प्रेम में पहुंचना है, full of love. पूरी तरह से प्रेम होना है। God wants to take us to that destination. और तब उसी डेस्टिनेशन तक, उसी जगह तक प्रभु आपको लेके जाएगा। We are already experiencing the love of God in our life. हमारे जीवन में परमेश्वर का प्रेम को हम अनुभव कर रहा हूँ। Matthew chapter 5 and verse 48, Jesus spoke to his disciples, therefore you shall be perfect just as your Father in heaven is perfect. मत्ती का 5:48 में लिखा है, यीशु यहूदी लोगों को कहता है, जिस प्रकार तेरा स्वर्ग पिता सिद्ध है, अच्छा है, ठीक है, इसी प्रकार तुम भी सिद्ध बनो। And finally you are reaching to that point where you will be full of love of God. और अंत में वहां तक पहुंच के आपका जीवन में पूरी तरह से परमेश्वर का प्रेम से भर जाएगा। Our Father in heaven is full of love. हमारा स्वर्गीय पिता पूरी तरह से प्रेम से भरा हुआ है। God is love. परमेश्वर प्रेम है। And we are also going to reach there. और हम सब भी उस मोड़ तक पहुंच जाएगा। Full of love. पूरी तरह से प्रेम। That perfection in our life. हमारे जीवन में ऐसा सिद्ध होना है। If you desire to progress to perfection, अगर आप ऐसा सिद्धता पूरा होना चाहता है, God wants to work in your life. परमेश्वर आपका जीवन में ऐसा ही चाहता है। It's not with your own strength, ये अपना शक्ति से बल से नहीं होगा, but Almighty God is going to work in your life. लेकिन हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका जीवन में काम If करेगा। you're sick on your body, कोई किसी का शरीर में अगर बीमार है, He is here to heal your body. प्रभु हमारा बीच में उसको चंगाई देने के लिए है। If you want to make a new commitment before His presence, प्रभु का उपस्थिति में कोई नया आप समर्पण करना चाहता है, this is the best time for you to make a new commitment before the presence of God. परमेश्वर का उपस्थिति में आपके लिए ये अच्छा समय है। अपने Because- आप को समर्पण करो, Because Jesus Christ is here. क्योंकि यीशु मसीह हमारा बीच में है। Come on, keep your right hand on your head. आपका दाहिना हाथ अपना सर में रखिए, अपना माथा में रखिए। By faith, we are going to pray. दाहिना हाथ अपना माथा में रखिए। You just join with me. आप मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। Right now, Jesus is going to heal you. अभी अभी यीशु आपको चंगाई देने जाएगा। That miracle is going to happen on your body right now. आपका शरीर में अभी अभी अद्भुत रीति से चंगाई हो जाएगा। The miracle working Jesus is here. अद्भुत काम करने वाला यीशु हमारा बीच में है। He is going to touch you and heal you. आपको चंगाई होने के लिए छू लेंगे। It's going to happen right now. ये अभी का आपके जीवन में अभी होगा। Your deaf ears are going to be opened right now. जो आँख कान सुनाई नहीं देता वो भी सुनाने लगेगा। Every tumor on your body is going to disappear right now in the name of Jesus. आपका शरीर में जो घाव भी हो रहा है यीशु का नाम से वो भी चंगाई हो जाएगा। If you are not able to walk properly right now, you are going to walk properly in Jesus' name. अच्छा से जो चल नहीं पाता है वो भी अभी यीशु का नाम से चल पाएगा। All the internal organs are going to be healed right now in the name of Jesus. आपका शरीर का अंदर में क्या भी बीमार होगा यीशु का नाम से सब चंगाई हो जाएगा। In the name of Jesus, I pray for all these precious people. सब लोगों के लिए यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। Jesus, have mercy on them. यीशु सबको दया करे। You are a compassionate God. वो दया करने वाला प्रभु, Out of compassion, you healed. वो दया करके तू चंगाई दे। You healed many thousands of people. आप चंगाई दे, दया करके हजार लोगों को चंगाई देने वाला And we प्रभु। experience the same compassion right now in our midst. और अभी अभी आप हमें दया कर रहे हैं, हम अनुभव कर रहा हूँ प्रभु। Jesus, you are touching these people. Thank you for touching these people. यीशु लोगों को तू छू रहा है, इसके लिए धन्यवाद। We take authority in the name of Jesus. यीशु मसीह का नाम से मैं अधिकार लेता हूँ। And we command every sicknesses to come out and leave these precious people in Jesus' name. इन लोगों का जीवन से हर एक प्रकार का बीमार यीशु मसीह का नाम से निकल जा। Every spirits of sicknesses come out right now in the name of Jesus. बीमार का आत्मा अभी अभी यीशु का नाम से निकल जा। Leave the people right now in the name of Jesus. लोगों को छोड़ के निकल जा यीशु मसीह का नाम से। Right now I declare these wonderful precious people are healed in the name of Jesus. मैं अभी यीशु मसीह का नाम से घोषणा करता हूँ,
ये सब लोग चंगाई हो चुके हैं। You are healed in the name of Jesus. यीशु का नाम से आपको चंगाई मिल चुके हैं। Amen. आमीन। Hallelujah. Experience your healing right now. Worship the चंगाई Lord. हो रहा है, अनुभव करो। Praise God for that healing. धन्यवाद, धन्यवाद, चंगाई दे। Praise Him for that चंगाई healing. दे, धन्यवाद, छुटकारा दिया, धन्यवाद। Praise Him for that healing. आपको चंगाई दे, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद दो। Come on, everybody, praise Him for that सब लोग healing. प्रभु को धन्यवाद दो, आपको चंगाई दिया, धन्यवाद दो।